Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Jaya Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Jaya Sita Ram. It's a very important point. Krishna designs the world, and he also designs the senses. So, the way you look at the world is under Krishna's control. Because you are limited to see the world through the senses. We are limited to see the world through the senses, which Krishna has designed. So, you are not independent even in seeing the world the way you want. It's totally controlled. Okay? Through the senses we are getting information, but I didn't design the senses which gives me information. And these senses are designed by Krishna, the world is designed by Krishna. The way I look at the world depends on these five senses. Grouped about the mind. Like a pig. When he sees a stool, he finds it very attractive. Because his senses are designed like that. It looks like that. For us, horrible. Our senses are designed in different way. So in this way, actually, if you see all the different species, what they are perceiving, we don't even know. All the different species are having of the same world different perceptions. When a horse sees a she-horse, he finds her very attractive. You don't find it attractive. When pig sees a she-pig, he finds it very attractive. And for us, woof. And when a pig sees Miss World, he doesn't find it interesting. But we become bewildered. So all of us are actually, our behavior, our arrangement, our outlook to this world is not in your control. Karanam guna sangvasya sadasat janma yonishu. The different species of life you are getting, it is because of your different previous desires and activities. But once you get a particular set of senses in the mind, you are forced to play around in this world with the help of that. You cannot work independent. Just like today, I have this body. I have to work in this world through the body. Prabhupada says something very interesting. Yesterday we were discussing in the night. That the soul has no independent identity. What is your name? Your name? Huh? Veerbhadra. Veerbhadra. Yeah. So always Veerbhadra Das means Krishna's Das. Correct? You understanding? Why? You try to understand the reason. The reason is I have no independent identity. Correct? Any name you take in this world, if you think it is you are disconnected from Krishna, you are in total Maya. You getting this point? You say my name is Prabit. Galat. Prabit, the servant of Krishna. Because the soul has no independent existence, no independent identity. It is servant of Krishna. Prabit, the servant of Krishna. There is no independent existence at all. That's an illusion. It doesn't exist. You are understanding? Just like what is the identity of this finger? The finger, the part of my body. On its own, it has no identity. It has no meaning. It's like, I'll give you one example. Suppose you're taking photograph of my body, or you're seeing me by a camera. Even if you don't see my full body, even you see my hand, you see the hand belonging to Namanishta. You will say that or not? You're not seeing me full, you're only seeing this hand. But you know, identifying the hand belonging to me. But suppose I am dead. Then you don't identify with me. So my hand is like.
So actually it is because of the soul. The soul has no independent existence. It is servant of Krishna. This is the whole crux of the whole thing. Very simple. Jiva Krishna Das. Jiva is Sarup hoy Krishner and Nitya Dasa. The Jiva is servant of Krishna. This should be very carefully understood. But presently when we are seeing in this world, we are forced to see through certain senses. So our vision in this world is already programmed. It is not absolute. It is not perfect. It is what Krishna designed for you to see. May not be the truth. Like for a ghoda, ghodi is very attractive. May not be the truth. There is nothing attractive in a ghodi. It's a bag of stool and urine. For us, Miss World is very attractive. It's total illusion. It's a bag of stool and urine. Body के अंदर क्या है? If you do not know, you can know through the senses. Just like if you want to know what is in my mind, you have to know when I talk. You can figure out what is there because it comes through the mouth. Correct? If you are there with some person, it will come out. The same way, what is inside my body, you can know through the Navadwaras. What comes through the nose? What comes through the mouth? Spitting. Eyes, गंदगी, कान से गंदगी, नीचे से गंदगी. ये पूरा शरीर गंदगी है. इतना समझने में कितना टाइम लगता है भाई? कितने जन्म लोगे समझने में कि ये शरीर पूरा गंदगी है. इसमें कान से क्या निकलता है? बहुत अच्छा चीज निकलता है. नाक से क्या निकलता है? मुंह से तो, आंख से गंदा, नीचे से गंदा. अंदर है क्या? सब गंदा ही है. लेकिन उसको थोड़ा एक बारी धो दो, हाँ, भूल जाते हैं कि इसके अंदर गंदगी भरी हुई है. समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? नहीं, उसको समझना आसान नहीं है. बहुत जन्म लगते हैं. आप किसी शरीर के अंदर क्या है जानने में ज्यादा मुश्किल नहीं है. बिकॉज नवद्वार से क्या निकल रहा? सब गंदा ही निकल रहा है ना. कोई डाउट है इसमें? लेकिन तब भी मन अलाउ नहीं करता. क्यों? बिकॉज हम सोच रहे हैं ये आध्यात्मिक शरीर है. थोड़ा लाइट लगा दो, थोड़ा फोकस हो, लोग जान दे देंगे, है ना. समटाइम्स इट हैज हैपेंड. we come to see somebody committed suicide because some girl did not accept. ठीक है भाई. So I really wonder that girl must have been what, a Divya beauty or not. You look ordinary girl and less than ordinary sometimes. So we are forced to see this world through the senses. And Shri Shri Radha Govinda ki. So we are forced to see this world through the senses. And the senses are programmed in a particular way. You get to see like that. Like a pig sees a sheep. Oh, so attractive. Because the senses are programmed in that way. He's not independent. Once you accept a particular body, you have to behave according to that body. But dog sees the bones, he runs. You don't run. Correct? जैसे बोलते हैं ना, बुल को तो लाल कपड़ा दिखाया भागता है. आपको दिखाने में कुछ नहीं होता है. उसका सेंसेस ऐसा प्रोग्राम हुआ है. आप ट्राई टू अंडरस्टैंड. You are not independent even in seeing this world. Your seeing this world is dependent on the senses which are given to you. You didn't design. आपने डिजाइन की अपनी आंखें, कान, मन. You didn't design. You get a particular set of sense object. You have to see in that way. You're forced to behave in a particular way. Once you get a particular body, you cannot change. Just like Prabhupada says, people want economic development. बच्चा थोड़ा सोचो तो जरा, सुअर का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे? क्या करोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट? हलवा खिलाओगे? नहीं खाएगा. कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली. कर सकते हो तो उसको समझो क्या कर सकते हो. इतना समझ आए पहले. We are forced to see through the senses, so we are not seeing what is the reality you do not know. इसलिए वेद में ज़्यादा ये सब बकवास चीज़ नहीं करते वो लोग. यहाँ से विमान ले, मून में जाके देखेंगे क्या है. वो क्या देखोगे? अपना देखना तो इन इंद्रियों से ही है ना. ये इंद्रिय आपके कंट्रोल में है ही नहीं. ये इंद्रियों से, ये तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है. आपको सत्य नहीं दिखेगा. जो इंद्रिय दिखाएंगे वही दिखेगा. समझ रहे नहीं? समझ रहे? समझ रहे ना? ये इंद्रियां आपको भगवान ने, दुनिया भी भगवान ने बनाई है. ये आपकी सारी इंद्रियां भी भगवान ने बनाई है. ये दुनिया को देखते हो, ये मन और इंद्रियों के चरों से देखोगे तो वैसा ही दिखेगा आपको. जैसे सुअर को मिस वर्ल्ड दिखती है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमको दिखती है, हाँ वेरी ब्यूटीफुल. सब आप इंद्रियों में ही फंसे हुए हो. सत्य का दर्शन कहाँ दिख रहा है आपको? बता के भी नहीं दिख रहा. बता रहे हैं शरीर के अंदर कुछ नहीं, गंदगी नहीं. वेरी नाइस. कौन मानता है? कोई नहीं मानता.
अरे भाई वो क्या करते हैं, ये मिस वर्ल्ड का कंपटीशन करते हैं। अगर आदमी को ये हमारा जो ज्ञान समझ आ गया कि शरीर में 9 द्वार से जो कुछ निकल रहा है गंदा ही निकल रहा है, तो अंदर गंदगा ही है, तो किसी शरीर को देखो क्या बोलोगे, थू। तो बोलेंगे क्या लोग, सब बैठे हैं हजारों लोग, एक वो आया कंपटीशन मिस वर्ल्ड, देखा थू थू, बिकॉज अंदर क्या है, गंदगी है ना, क्या बोलना चाहिए। जब टट्टी देखते हो क्या बोलते हो, थू बोलते हैं, नहीं तो बोलते। तो एक टट्टी का पैकेट ही देखे ना, थू थू बोलते क्या, नहीं। इतना आकर्षित हो रहे हो, ऐसे मूर्खता में फंसे हुए हो। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप अपने इंद्रियों से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसमें वेद में सत्य को जानने के लिए इंद्रियों को तो शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस इंद्रियों से सत्य नहीं निकाल सकते आप। वो तो पहला स्टेप वेद में है, आपकी इंद्रियों से सत्य पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये इंद्रियां तो माया जाल में फंसी हुई हैं, इनसे सत्य नहीं पता चलेगा। समझ रहे नहीं, समझ रहे, ये लोग इतने मूर्ख हैं। ये पहला स्टेप। इसलिए ज्ञान जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले हम्बल बनो, ये चीज़ को एक्सेप्ट करो। घमंड किस चीज़ का है आपको, आप इस दुनिया को अपनी इंद्रियों से देख रहे हो, इंद्रियां ऑलरेडी सीमित हैं, करेक्ट। जैसे डिज़ाइन दी हुई है वैसे ही आपको दिखेगा। तो आपको एक्चुअली देखना है तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान से देखना पड़ता है। और ज्ञान कहाँ से आता है, वेद से आता है, आप खुद नहीं निकाल सकते। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे गाड़ी है, आपका गाड़ी नहीं चल रहा, तो गाड़ी का बोनट खोला जाता है, ठीक है। आप भी देख रहे हो उसको, आपको समझ नहीं आता क्या है, क्यों नहीं काम कर रहा। हो सकता है खाली 1-2 स्विच आपको दबाने हैं, गाड़ी काम करना शुरू करेगा, आपको मालूम नहीं। दूसरा आदमी आता है, मैकेनिक, एक बटन इधर है, एक बटन इधर है, गाड़ी काम करना शुरू कर देती है, करेक्ट। क्या फ़र्क है उसमें आप में, आप भी गाड़ी को देख रहे थे, वो भी देख रहा था, क्या फ़र्क है, वो ज्ञान से देख रहा है, आप मूर्खों की तरह देख रहे हो, कुछ नहीं मालूम आपको। तो सिमिलरली अभी हम जो दुनिया को देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां जैसी प्रोग्राम करी गई हैं वैसे देख रहे हो, ज्ञान से नहीं देख रहे। ज्ञान आपको ये मिलता है शास्त्र से। जब आप वेद से ज्ञान को, आप समझ रहे हैं, आप सुबह सूरज देखते हो, क्या दिखता है, किसी ने एक प्लेट हवा में लगा दी है, गर्म प्लेट। लेकिन सत्य ये नहीं है, सूरज बहुत बड़ा प्लैनेट है, अर्थ से लाखों टाइम बड़ा है। तो ये आपको कैसे पता चलता है, आपके इंद्रियों से पता नहीं चलता, ये ज्ञान सुनना पड़ता है ज्ञान, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो वैकुंठ का ज्ञान है, वो तो आपकी इंद्रियां कुछ भी पता नहीं कर सकती। क्यों, बिकॉज ये जो भौतिक इंद्रियां हैं ये सीमित हैं। अथवा श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की लीला आप अपने भौतिक इंद्रियां से नहीं देख सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं मेजर कर सकते हो। सेवोन्मुख ही जीवा दो। जब आप सेवा भाव में शुरू हो जाते हो तो स्वयमेव स्फुरति यतः, भगवान कृपा करके आपकी सीमित इंद्रियों में भी दर्शन दे देता है। होता है ना। अब जैसे हम विग्रह को देख रहे हैं, अब सेवा भाव से देखते हैं। देखो अभी तो हमने सुना मेरा तो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है ही नहीं, आप समझ रहे हो। जैसे किसी को बोलते हैं ना आपका आइडेंटिटी क्या है, तो मेरा आइडेंटिटी मैं कृष्ण का सेवक, बस। आपका दूसरा आइडेंटिटी नहीं है, दूसरा कोई भी आइडेंटिटी माया है। आप बोलो मैं मनुष्य हूँ, माया है, मैं लड़का हूँ, माया है, सब गलत है आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है आपका, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दासा, मैं कृष्ण का सेवक, बस आपका यही आइडेंटिटी है, और कोई आइडेंटिटी आपका गलत है। बाकी आइडेंटिटी तो चेंज होता रहता है ना। मैं बच्चा हूँ, मैं यंग आदमी हूँ, करेक्ट, मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, ये तो आइडेंटिटी हर दिन बदलता रहता है। ये आइडेंटिटी परमानेंट नहीं है। परमानेंट है क्या, नहीं। मैं इस स्कूल का हूँ, मैं इस कॉलेज का हूँ, ये आइडेंटिटी तो बदलता रहता है, हर दिन बदलता रहता है। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बट ये आइडेंटिटी मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये इटर्नल है, ये कभी चेंज नहीं होता आपका। बाकी जो आइडेंटिटी है हर दिन बदल रहा है आपका। क्या आइडेंटिटी है जो बदल नहीं रहा, जो कांस्टेंट है, वो है जीवेश स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दासा। जीवेश स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दासा। द रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो यही एक्चुअली हमारा
सत्य है, लेकिन ये सत्य आपको अपने इंद्रियों से कभी पता नहीं चलेगा, ये आपको वेद से सुनना पड़ता है। ओह, क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां तो प्रोग्राम्ड है, वो तो दुनिया को देखती हैं एक तरह से, सत्य को थोड़ी देख सकती हो। तो जैसे जैसे कुत्ते को दुनिया दिखती है, आपको क्या मालूम, उसको अलग तरह से दिखती है। जैसे उसकी इंद्रियां डिज़ाइन करेगी उसको वैसा दिखता है। कुछ कुछ जानवर को बोलते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर का पता नहीं चलता। तरह तरह से कुछ जानवरों को ज़्यादा दिखता है हमसे, करेक्ट? मालूम है आपको, कुछ जानवरों का परसेप्शन हमसे ज़्यादा होता है, उनको छोटा सा भी आवाज़ सुनाई देता है, उनका दृष्टि भी बड़ा भयंकर होता है ना? कुछ जानवरों को पता चल जाता है पहले ही अर्थक्वेक आने वाला है, कैसे पता नहीं, उनकी इंद्रियां अलग से तरह से बनी हुई है। सुना है ना, कुछ अपशकुन होने वाला जानवरों को पहले पता चल जाता है। तो सबकी इंद्रियां हमारा जो देखो, भगवान ने सृष्टि दिया और फिर एक इंद्रियों से हमको कवर कर दिया। हमारा जो दुनिया को दर्शन दे रहे हो इंद्रियों से प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। फिर से समझो, सुअर को मिसवर्ड दिखती है और हमको सुअर दिखता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां उस तरह प्रोग्राम हुई है। तो आप दुनिया को सत्य नहीं देख पा रहे हो, इंद्रियों के से फिल्टर करके देख रहे हो। तो इसलिए एक तो क्योंकि हमको माया में जाना था इसलिए भगवान ने ऐसा बनाया, लेकिन आपको अगर सत्य समझना है, ये इंद्रियों से नहीं समझ सकते, ये तो माया के लिए बनाई गई है। सत्य जानने के लिए, सत्य जानना है तो आपको इधर से सुनना पड़ेगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भेद भावेद ग्राह्यम इंद्रिय। कृष्ण बोल रहे हैं सत्य जानना चाहते हो, इन इंद्रियों से नहीं देखना भाई। जैसे शंकराचार्य ने अद्वैत तत्व दिया था, वेदव्यासी इसको पढ़ना नहीं है, बड़ा डेंजरस है, इसके थ्रू नहीं जाना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, क्या बोला? मायावाद भाष्य सुन रहे हुए सर्वनाशा, इस पे नहीं जाओ, फंस जाओगे। इवन शंकराचार्य बोलते इसको किसी ने सुना वो भी कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो तो शिव जी हैं, बहुत को बनाया, बहुत बड़ा एग्जाम बनाया उन्होंने। मैं तो इस तरह सोचता हूँ, पहला छोटा एग्ज़ाम, माया के एग्ज़ाम चलते रहते हैं, छोटे एग्ज़ाम छोटे एग्ज़ाम छोटे एग्ज़ाम, और सबसे भयंकर एग्ज़ाम देखा हरिदास ठाकुर ने, माया देवी आ गई उसको, करे वो फाइनल एग्ज़ाम, आपको वो पास करना पड़ेगा। छोटे 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 पास करो, माया आप एक पास करो, फिर दूसरे दिन दूसरा टफर एग्ज़ाम आएगा। लेकिन ये याद रखना, कभी एग्ज़ाम आपका कैपेसिटी से ज़्यादा का नहीं आता। आपकी क्षमता के बाहर माया कभी एग्ज़ाम नहीं देती, आपकी क्षमता के अंदर होता है एग्ज़ाम। आप कृष्ण के चरण पकड़े रहो, पट 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 सारे एग्ज़ाम पास करते रहोगे। उसके बाद जब माया के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, वो फाइनल एग्ज़ाम बता दिया मैंने हरिदास ठाकुर को, उसके बाद शिव जी एग्ज़ाम लेना शुरू करते हैं। वो जेल के यही तो हेड है, और उनका एग्ज़ाम होता है मायावाद। अरे तू भगवान हो गया, अरे बहुत भयंकर एग्ज़ाम हो। नहीं, प्रभुपाद जी बोले मैं कृष्ण का सेवक हूँ, एग्ज़ाम पास। एक्चुअली बच्चे की तरह हो। मेरे को याद है एक बारी कुछ बच्चों को ट्रेन करना था हमारे मंदिर में, छोटे बच्चे थे, जैसे वो नहीं आया था बालक, ऐसे 6-7 क्लास के, तो उनको सब सिखा दिया, कृष्ण भगवान है, तुम ये जप करो, ये सब वो सब वो सब। तो उनको एग्जामिनेशन होता है ना आजकल, एग्जामिनेशन का, शिक्षा का, सेवक साधक, तो एग्जामिनेशन का पेपर आया, भगवान कौन है? कृष्ण है। कैसे मालूम? प्रभु जी बोले। नेक्स्ट, कितनी माला जप करते हो? 16 माला जप करते हो। क्यों जप करते हो? प्रभु जी बोले। सारा बस ऐसे ही रहने का, बस ज्ञान चक्षुषः, अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, आचार्य ने बोला है, बस सिंपल। जब चैतन्य महाप्रभु अपना नवद्वीप को छोड़ने से पहले महाप्रकाश का दर्शन दिए थे, तो एक भक्त आया उनके पास, चैतन्य ने बोला ज्योति नहीं, नहीं ज्योति नहीं चाहिए। क्यों बोला? बिकॉज उसको सुना है ज्ञान चक्षुषः, ये नहीं चाहिए मेरे को कृष्ण की सेवा चाहिए। ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ज्योति चाहिए, नहीं ज्योति नहीं चाहिए। तो वो आपको भी एक एग्ज़ाम मिलेगा एक दिन, वो शिव जी एग्ज़ाम लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत नहीं कर रहा शायद। देखो वैकुंठ धाम जाना है, एग्ज़ाम होते हैं, हर चीज़ का एग्ज़ाम होता है। पहले माया छोटे छोटे एग्ज़ाम देने शुरू करेगी, छोटे छोटे, ठीक है। आपको दारू की बोतल, छः रिजेक्ट हो गया, छोटा एग्ज़ाम। कुछ लोगों के लिए वही बहुत मुश्किल है। चलो इतने तो आप भाग्यशाली हो। उसके बाद तरह तरह के सारे इंद्रिय भोग पर, और फाइनल एग्जाम आएगा, माया देवी का एक रूप ही आएगा आपके सामने, नहीं मेरे को कृष्ण का सेवा करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। खत्म हुआ तो आपको उस समय आप ब्रह्मानंद में पहुंच गए, बिकॉज ब्रह्मभूता, आपको बड़ा आनंद मिल रहा है, आपके 100-200 शिष्य हैं। अरे तू ही नारायण है, नहीं मैं कृष्ण का सेवक हूँ। क्यों भाई? प्रभुपाद जी बोले। बस
आपको दिखा नहीं दिखा वो जरूरत नहीं है। शास्त्र ने बोला है आज ज्ञान चक्षुषा, इंद्रियों से आप कुछ भी डिसिप्लिन नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक डिवोटी ने बताया था कि जब आप पहली बारी फाइटर जेट को चढ़ाते हो, आपको ऊपर नीचे का पता नहीं चलता। कभी बड़ा लिफ्ट में देखा, जो स्पीड वाला लिफ्ट होता है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लगता है गिर रहा है, एक्चुअली लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है, थोड़ा स्पीड चेंज हो गया, हमको लगता है गिर गया। तो शुरू में जब आप फाइटर जेट में चलते हो, आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कुछ मालूम नहीं चलता, आपको खाली कंट्रोल टावर को सुनने का। अगर आप अपने सोच रहे हो कि अब तो नीचे जा रहा है, सीधे गिरा दोगे प्लेन को। आपका परसेप्शन गलत होता है शुरू में, समझ रहे हैं? समझ आ रहा है आपको? किस पे आपका इंद्रिय चक्षुषा नहीं, शास्त्र चक्षुषा, आपको शास्त्र के थ्रू देखना पड़ता है, नहीं तो आप गलती करोगे। तो वैकुंठ धाम जाना है, शास्त्र चक्षुषा, वही प्रभुपाद जी सिखा गए। क्या कुछ भी गलत हो सकता है, अच्छा शास्त्र गलत नहीं हो सकते। कितनी बारी प्रभुपाद जी ने समझाया। प्रभुपाद जी ये भी बोले कभी कभी कॉमन सेंस भी गलत हो जाता है। एक बारी आया था सेकंड कैंटो भागवत में, बहुत एक सुंदर परपट है, ऐसे आचार्य के शरण में रहने में कितना आनंद है। तो उस परपट में सन के बारे में बताया जाता है। तो पहले श्लोक में आता है कि सन तो आई है भगवान का, दूसरे श्लोक में आता है सन तो उनका चेस्ट में है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन कॉमन सेंस गलत हो सकता है, लेकिन शास्त्र गलत नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए शास्त्र गलत नहीं हो सकता। ये ऐसा विश्वास में आप भगवान के चरण में जाओगे। शास्त्र चक्षुषा, ठीक है। तो इसी तरह गुरु साधु शास्त्र तीन ते कोरिदे आवाक्य, इन्हीं तीन के वचन से हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है, ठीक है। नहीं तो प्रगति का कोई, आप सोचो इंद्रिय भोग को छोड़ के कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ पाओगे इंद्रिय भोग को, कभी नहीं छोड़ पाओगे जब तक शास्त्र चक्षुषा नहीं होगा। क्यों? रीज़न क्या है बता देता हूँ। आप सोचोगे मैं चलो इंद्रिय भोग करके समझूंगा कि इंद्रिय भोग ठीक नहीं है, अपने आप से समझूंगा, कभी नहीं हो पाएगा। एक तरह की दारू पियोगे, पी के मैं पी के समझूंगा कि मेरे को नहीं पीना है, पियो। उसको पी के उल्टी करके समझ जाएगा ये दारू नहीं पीऊंगा। हजारों है ना, कोई एंड नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा उसका। माया के पास इतना वैरायटी है, आप एंजॉय करके माया का त्याग नहीं कर सकते। अपने परसेप्शन से, इंद्रिय चक्षु से आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। कैसे आध्यात्मिक प्रगति करोगे? ज्ञान चक्षुषः, शास्त्र चक्षुषः, तब आपका आध्यात्मिक प्रगति होता है, ठीक है ना। इसलिए गुरु का क्या क्वालिफिकेशन बताया गया, बताओ। तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासुषेय उत्तमम। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए क्योंकि वो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अगर आपको अल्टीमेट सत्य जानना है, गुरु के पास जाओ। और उसका क्या क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट लाइन में, शब्दे परे च निष्णातम, वो शास्त्र चक्षुषा है, वो शब्दे जो शास्त्र के जो शब्द हैं उस पर वो स्थिर है। ब्रह्मणी उपशमाशयम, इसलिए वो पूरे ब्रह्मन प्लेटफॉर्म में है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। कैसे वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में है? प्रभुपाद जी बोलते हैं आप ये एक्सेप्ट कर लो, जो जो भगवत गीता में दिया है वो सत्य, उसी समय आप मुक्त पुरुष हो जाते हो। मोक्ष ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैकुंठ धाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल चीज़ के, जो कृष्ण जी बोलते हैं गीता में एक्सेप्टेड, हो गया आपका वैकुंठ का टिकट, साइन हो गया, जाओ। जो जो कृष्ण ने बोला है कृष्ण भगवत गीता में एक्सेप्टेड। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहेगा इतना घमंड क्यों लेते हो? क्या दिखता है तुमको? ये लाइट नहीं है, हाथ तक नहीं दिखता, मेरे को नहीं दिख रहा, क्या दिखता है तुमको? शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र के थ्रू देखो, कह रहे तब आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा और उसी से आपको वैकुंठ धाम मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की